All right, so let me share my screen. Guys, any doubts on functions and procedures? Let me quickly recap the functions part, right? So the function definition we already know, right? Correct? Yes or no? The functions definition we already know, correct? Guys, can anybody tell me what is this returns? Why do we specify the returns int returns varchar? Am I audible? Yes. Okay. So why this, when you create a function, what is this? First you tell me what is this? Data type. City name varchar data type. Data type, but in function what do you call this? What is there inside the bracket? What do you call this? Parameter. Once again. Parameter. Yes, it is called as a parameter. It is, of course, in the parameter we are passing a variable and we are specifying the data type, but we are calling it as a parameter or a input type. Okay, so when you write create function name, and you are just passing the parameters, this is called a parameter or a input. It can be multiple also. We have given just one parameter. If you want multiple parameters, give a comma and specify another variable and data type. It completely depends on function requirements. So for what you are writing a function, what is the purpose of writing a function? Like this is, there is an see, if you think of select power. So how many parameters this function takes, guys? When you say power, how many parameters, how many inputs? Two, right? Let's say I'm writing 2 to the power 3. That means, so this function is designed in such a way that you have to pass two parameters to work. To make this function work, you have to pass two parameters. Okay, so now here, so we have only one requirement. What, see here, the function name is function count student wise, count city student wise. Okay, count student city wise, sorry, counts student city wise. Okay, city wise you have to pass city name as a parameter. Okay, see the function name is count student city wise. In each city how many students are studying? Okay, in each city how many students are studying, that is what you want to count. So that means you are passing the city name, yes or no? We are passing the city name, and based on the city name it will give you the count, and we have to return that count also, because after performing the task we have to return the value. So here, that is the reason why we have specified return as integer. We are going to this city name as an input and trying to take the count of it, then we'll return the count. Clear? I'm not sure whether this we have this table or not. Let me create this if it is not there. It is there. Let me check. Okay, it's already there. All right, so what I'll do is I'll simply execute this. What is the problem? Student address stadd. Okay, stadd, then equals to city name. Let's try to execute it. Okay, commands completed successfully, and I have told you, okay, if you want to run this function, you have to use select dbo database owner dot fn count student city wise. मैं भुवनेश्वर पास कर रहा हूँ. So let's see how many students are there from Bhubaneswar, guys. How many students are there from Bhubaneswar?
A quick count. 5. 5, right? So let's run this. Am I getting 5? Okay, so clear. So this is an input parameter. So this is a return type. What type of data you are going to return from this function? काम होने के बाद आप क्या रिटर्न करना चाहते हो? आप स्ट्रिंग रिटर्न करोगे या वैर के आप इंटीजर रिटर्न करोगे, फ्लोट रिटर्न करोगे, डेट रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे? दैट अगर मुझे अगर डेट चाहिए, जो बंदा ज्वाइन किया है, लेट्स से जो बंदा टॉपर है, ओके, उसका एनरोलमेंट डेट क्या था, ओके, तो मैं यहाँ पे रिटर्न्स डेट ही लिख दूंगा। मुझे अगर कुछ नेम चाहिए तो रिटर्न्स वैर कैर। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये फंक्शन को मुझे बनाना है, और ये फंक्शन इनपुट क्या लेगा और आउटपुट क्या रिटर्न करेगा। सो जब आप लोग बनाओगे ऑटोमेटिकली, वो ऐसा नहीं कि कोई किसी को बताता है, आपको फंक्शन अगर बोल दिया जाएगा कि दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन, you take these inputs and you give this output. This is how it works. So clear everyone? Yes. Okay, so this is the use of function. यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक फंक्शन है अपने पास, स्टूडेंट करके कुछ टेबल है क्या? नहीं, इसमें नहीं है। ये कैन एनीबडी टेल मी? ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दिस फंक्शन डज? मुझे समझाओ कोई, कैन एनीबडी टेल मी? पहले देखो, एक टेक 2 minutes ऑफ टाइम, देन यू एक्सप्लेन। हेलो, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हुआ, पैरामीटर क्लास इंटीजर दिया हुआ है और रिटर्न बाहर का चाहिए, और डिक्लेयर हुआ बेस स्टूडेंट मार्क, मैक्सिमम मार्क फ्रॉम। हाँ, करेक्ट। हाँ, सही जा रहे हो, बताओ फिर। उसके बाद रिटर्न आएगा बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है और मार्क किसका ज्यादा है और कहाँ से हो। कहाँ से नहीं, ओनली बेस्ट स्टूडेंट आएगा, बेस्ट स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। एनीबडी? हाँ, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा और डिटेल में? सुनील ने ऑलरेडी ही हैज़ गिवन यू ए क्लू एंड हिंट, पूरा बता दिया, बट और अगर आप रिफाइंड वे में एक्सप्लेन करना चाहोगे तो क्या होता है, ये फंक्शन क्यों डिज़ाइन किया हुआ है, क्या करेगा? हेलो सर। यस। पहले क्या है कि मतलब क्रिएट फंक्शन किया है और पैरामीटर दिया है, क्लास डाटा इंटीजर, उसके बाद रिटर्न आया var क्या 30, तो वो मतलब लाना है, मतलब नेम हो कि फैच करके लाना है। Correct. तो उसके बाद डिक्लेयर किया है, मतलब बेस्ट स्टूडेंट वाचर, मतलब ये alias टाइप दिया है। तो उसके बाद सिलेक्ट आज नेम आज बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क इक्वल टू, तो सिलेक्ट मार्क मतलब मैक्सिमम मार्क को स्टूडेंट से फेच करके लाना है पर क्लास, देन रिटर्न बेस्ट। और कोई? एकदम मुझे कोई नॉन टेक्निकल वे में समझा के बताओ, फंक्शन क्या करेगा? ये आप लोगों ने थोड़ा टेक्निकल बताया कि क्लास ये वेरिएबल ले रहा है एज ए इनपुट आउटपुट। मुझे गेट टॉप स्कोरर क्यों बनाया गया है बताओ, एक हाई लेवल पे, ठीक है। मुझे कोड समझ में नहीं आता है, मुझे बताओ कि गेट टॉप स्कोरर क्या करेगा और आउटपुट क्या देगा, सिंपल।
और कोई नहीं, ट्राई करो यार। मार्क्स मैक्सिमम मार्क के हिसाब से बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है वो फेंच करके लाएगा। मैक्सिमम। बट आप लोग एक चीज़ भूल रहे हो, ये क्लास कौन सा क्लास का बंदा है वो इनपुट पहले ले रहा है। करेक्ट। ये गेट टॉप स्कोरर जो डिज़ाइन किया हुआ है, इट विल टेक इनपुट एज क्लास। क्लास का जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 का टॉपर तुम्हें, क्योंकि एक टेबल में आप सोचो हर एक क्लास का डेटा है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। तुम्हें क्लास 10 का टॉपर ढूंढना है तो तुम्हें पहले क्लास का जो क्लास आईडी पास करना है, या क्लास नंबर कौन सा क्लास में है बंदा वो पास करना है। वो क्लास नंबर को लेके उसी क्लास में कौन टॉपर है बंदा, बेस्ड ऑन मार्क्स वो ये करता है, फेच करता है, राइट। मैंने क्लास 9 भेजा तो यहाँ पे ये सब को ही चलेगा, ये तो ठीक है। दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, ओके। सो ये क्या करेगा, ये क्लास नेम लेगा इनपुट, ओके, दैट्स ए इंटीजर टाइप क्लास नेम लेगा, आउटपुट वो बंदे का नाम देगा, उसी क्लास का जो टॉपर है उसी का नाम देगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जो नाम इसमें हम लोग नेम सेव करके रखेंगे। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये सब क्वेरी चला रहे हो जिस उसी क्लास का बंदे का क्या मार्क है। सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू लेट्स से क्लास 9, ओके। लेट मी देखो, इसमें ये क्या करता है, लेट्स से क्लास लेगा 9, आप जब रन करोगे आपने लिखा सिलेक्ट dbo डॉट fn गेट टॉप स्कोरर 7 आपने पास किया, ओके। ऐसे ही कॉल होता है फंक्शन, करेक्ट। तो ये 7 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्लास हो गया 7। तो ये तो आपने डिक्लेयर कर दिया, तो क्या करेगा, सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7th क्लास में जो बंदा है, लेट्स से उसका मैक्स मार्क फाइंड आउट किया, जो मैक्सिमम मार्क है आप सोचो 95। 7th क्लास में एक बंदे ने स्कोर किया है 95, ठीक है, 95 स्कोर किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 95 मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से 95। देन सिलेक्ट @बेस्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम वेयर स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स टू 95। जिसका 95 रहेगा वो बेस्ट स्टूडेंट का नाम आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप बेस्ट स्टूडेंट रिटर्न कर रहे हो, गॉट इट, यस और नो। बट आप एक या इसमें ये फंक्शन में क्या गलती क्या है, और कोई बता सकता है, और कोई, इज देयर एनी कैच? यहाँ पे आप लिख रहे हो सिलेक्ट, ओके। जब कोई फंक्शन बनाता है ना उसको बहुत सोचना पड़ता है। देखो मतलब गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ। बेस्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम मैंने लिखा, ओके, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 95। सिलेक्ट बेस्ट स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 95। आपने ये जो लिखा ये 95 उसी मतलब क्लास 7 का जो हाईएस्ट रखा है बंदा 95 रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये रन हो गया, 95 आ गया, उसके बाद ये क्वेरी चलेगा, करेक्ट, क्लियर सो फार? यस। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप सोचो क्या एक ही क्लास का बंदा 95 रख सकता है? कोई दूसरा बंदा 95 रखा तो प्रॉब्लम होगा ना। ओके ओके, कोई दूसरा बंदा अगर 95 रखा दूसरे क्लास में, इसलिए आप ये काम करो, ये करो, ठीक है, मार्क्स इक्वल्स टू दिस, उसके बाद और एक एंड लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो, ये आउटपुट आएगा 95, और एक एंड लगाओ, उसमें ना लिखो क्लास इक्वल्स टू @क्लास, समझ रहे हो। तो मतलब उसी क्लास का ही 95 चेक करेगा। ये 95 आने के बाद भी इसको फिर से चेक करना पड़ेगा कि भाई क्लास वही होना चाहिए, 7 होना चाहिए, करेक्ट। ये गलत उठा के लेके आ सकता है।
ठीक है, यस सर। ओके। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो कि नेम ये पहले 95 आ गया, उसके बाद और एक कांड लगाओ, फिर से क्लास को चेक करो, उसी क्लास होना चाहिए, 95 मार्क्स रहना चाहिए और क्लास 7 होना चाहिए। सो दिस इज़ अ कैच, दिस इज़ अ मिस्टेक विच इज़ ओके, ऑल राइट। सो दिस इज़ क्लियर। ये फंक्शन कैसे चला, ये फंक्शन का समझ में आया, क्या फंक्शनलिटी है, क्या करता है ये, क्लियर। एक्चुअली अगर ये अगर मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करता है ना, यहाँ पे ना ये सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं रहता है, एक टेबल वेरिएबल करके रहता है, टेबल वेरिएबल, टेबल डेटा टाइप रहता है और टेबल डेटा टाइप के थ्रू हैंडल होता है। बट अपने को उतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज वो एसक्यूएल डेवलपर जो आर्किटेक्ट डेवलपर उसी रोल में चाहिए। डेटा एनालिटिक्स में इतना बहुत हो गया, मतलब काफ़ी हो गया, उसको अगर करेंगे तो फिर और एक हफ्ता लगेगा, अननेसरी मतलब स्ट्रेच होगा। अगर मुझे कुछ वीडियोस मिलता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग TSQL पार्ट, कोई ज़रूरत नहीं है उसको सीखने की। ओके, आप खुद से अगर सीखना चाहोगे तो यू आर फ्री टू लर्न एंड एक्सप्लोर। ओके, तो सिंगल वैल्यू में ये इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर वेरिएबल, मतलब इट होल्ड्स एट ए टाइम, इट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू। एरे वेरिएबल है, देन टेबल वेरिएबल है, ये सब बहुत कुछ है, वो आप लोग ना इसमें पाइथन में भी सीखोगे। और यहाँ पे मतलब अननेसरी है, वो टाइम टेकिंग है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको खाली ये याद रखना है कि फंक्शन का डेफिनेशन याद रखना है। ओके, जब फंक्शन और प्रोसीजर का डेफिनेशन क्या होता क्या है। ओके, ओके, फंक्शन का डेफिनेशन याद रखना है, प्रोसीजर का डेफिनेशन याद रखना है और बेसिक सिंटैक्स याद रखना है, मतलब क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम, ओके, इनपुट पैरामीटर मुझे ये चाहिए और क्या रिटर्न करेगा फंक्शन, ये रहना चाहिए, ये बोलोगे तो हो जाएगा। फिर उसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख के फिर रिटर्न कर दो वैल्यू को, इतना ही खाली याद रखो। और प्रोसीजर में क्या रहता है, प्रोसीजर में क्रिएट प्रोसीजर नेम, यहाँ पे हो गया तुम्हारा इनपुट पैरामीटर। प्रोसीजर में रिटर्न, हम लोग प्रोसीजर में रिटर्न नहीं यूज़ करते थे, रिमेंबर, प्रोसीजर में ये नहीं रहता। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ए फंक्शन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोर्ड प्रोसीजर एंड अ फंक्शन, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है। There are many, but we will cover. देखो एसपी में और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, बट यूडीएफ मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, यस और नो। हम फंक्शन हम लोग जब लिख रहे हैं, रिटर्न टाइप इज कंपलसरी, राइट। हम लोग को बिना रिटर्न के ये फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। You have to either return varchar or integer or date, okay, based on the requirement you have to return the values. Clear? Yes. Okay, but जब हम लोग प्रोसीजर लिखते थे, हम लोग लिखते थे क्या, कहाँ गया प्रोसीजर, जब हम लोग प्रोसीजर बनाते थे, देखो यहाँ पे हमने कहीं पे रिटर्न टाइप मेंशन किया, No. right? So that is the main difference. Okay, then the next thing is SP can have input output parameters, but UDF only has input parameters.
ओके, दैट मीन्स व्हाट, जब स्टोर्ड प्रोसीजर हम लोग लिखते हैं ना, स्टोर्ड प्रोसीजर, सो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या करता है, अगर इन केस यू वांट टू रिटर्न ए वैल्यू, ओके, इट हैज़ इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर्स. व्हाट इज दैट आउटपुट पैरामीटर, आई विल टेल यू. अरे यार ये ओरेकल का बता रहा है. देखो, ओके, सो सी व्हाट हैपन्स हियर इज क्रिएट प्रोसीजर. यहाँ तक समझ में आया? क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम समझ में आया? उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इनपुट पैरामीटर बोलते हैं, करेक्ट, पता है ना? हम लोग मॉडल ईयर, ओके, मॉडल ईयर ले रहे हैं स्मॉल इंट में, ओके, दिस इज कॉल्ड इनपुट पैरामीटर. उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर बंदा ले रहा है ना, ये ले रहा है, इसको कर रहा है आउटपुट. ओके, ये हो गया इनपुट पैरामीटर, ये हो गया आउटपुट पैरामीटर. आउटपुट पैरामीटर क्या करता है एक्चुअली, रिटर्न इज नॉट मैंडेटरी इन प्रोसीजर, बट इन केस प्रोसीजर को अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करना है तो थ्रू आउटपुट पैरामीटर इट कैन रिटर्न. ये जो है इनपुट पैरामीटर है, यहाँ पे अगर आउटपुट आपने लिखा ना, इट बिकम्स एन आउटपुट पैरामीटर. चलो देखो, एज बिगिन सिलेक्ट, देखो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, ओके, प्राइस फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स वेयर मॉडल ईयर इक्वल्स टू मॉडल ईयर. ओके, ठीक है. सो ये क्या कर रहा है बेसिकली, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, लिस्ट प्राइस एंड प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स वेयर मॉडल इक्वल्स टू मॉडल ईयर. सो ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट काउंट इक्वल्स टू रो काउंट. सो रो काउंट कहाँ पे ले रहा है, रो काउंट इधर, देखो हम लोग ये करके देखते हैं. अपना क्या था, टॉप स्कोरर स्टूडेंट करके था ना, माई स्टूडेंट्स. चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. माई स्टूडेंट, चलो मुझे क्या करना है, बीबीएसआर से स्टूडेंट काउंट करना है. ओके, हाँ, यूएसपी यूजर स्टोर प्रोसीजर, फाइंड काउंट स्टूडेंट. ओके, काउंट स्टूडेंट, ये क्या करेगा, सिटी नेम लेगा. कौन सा डेटा टाइप लूँ मैं गाइस, सिटी नेम कौन सा, वर्कर. ऐसे 30. ओके, ये रिटर्न क्या करेगा, ओके, स्टूडेंट काउंट. ये बराबर है इसका डेटा टाइप, यस, स्टूडेंट काउंट. ये हो गया इंटीजर. ओके, सिटी नेम, स्टूडेंट काउंट, ये हो गया इंटीजर. ये इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट पैरामीटर. सो क्योंकि इसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट का काउंट निकाल के बाहर भेजेंगे, प्रोसीजर के बाहर भेजेंगे. चलो बिगिन सिलेक्ट. ओके, सिलेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट जस्ट st नेम. ओके, बिगिन सिलेक्ट st नेम
Okay, st name, then maybe st address from हो गया इसका my student. Where st address equals to @ क्या था, हमने क्या डिक्लेयर किया था, सिटी नेम, करेक्ट. ओके, @ स्टूडेंट काउंट इक्वल्स टू स्टूडेंट काउंट इक्वल्स टू रो काउंट. चलो must declare scalar variable @ city name. ये तो हम लोग ये कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं ना डायरेक्टली. हाँ, कोई कहीं तो कुछ स्पेस में रह गया होगा. चलो इसको हम लोग ना क्या करते हैं, इसको भी रन करके देखते हैं. एग्जीक्यूट कैसे करते हैं प्रोसीजर को, एग्जीक्यूट नाम ऊपर का जो एग्जीक्यूट देन प्रोसीजर का नाम. ओके, execute procedure का नाम, then you write the, see this procedure takes how many parameters, one parameter, one is called city name, second one it will give output. काउंट. ओके, तो सिटी नेम में लिख रहा हूँ BSR. ओके, आउटपुट में लिखूँगा लेट्स से ABC. चलो एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप टू एनवायर टू इंट. ओके, सो क्या प्रॉब्लम है बताओ. इंटीजर दिया है आपने हम्म. सर, इंटीजर दिया है आपने आउटपुट. आउटपुट हमने इंटीजर दिया है, राइट. select OPT. Why OPT is null? देखो, if I just print it here, print row count, अल्टर, तो इसको अल्टर करते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस. मैसेजेस में कितना रो है अपना, 5 रो, राइट. यस.
the output is plus cost चलो फिर से ऑल्टर करो इसको। और एक ब्रैकेट ब्रैकेट एक अच्छा अच्छा करेक्ट। द आउटपुट इज 5 राइट। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, द वी आर नॉट एबल टू रिसीव द आउटपुट। एक्चुअली ये जो है ना, ये मैं क्यों किया पता है क्या? एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन दिस। ओके, मैंने यहाँ पे ये क्या करेगा, आउटपुट पैरामीटर के थ्रू एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है? आउटपुट पैरामीटर के थ्रू एक वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ये रो @रो काउंट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल बोलते हैं। इमीडिएटली इसमें ना ये सिलेक्ट क्वेरी में जितना रोज आया है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये सिलेक्ट क्वेरी में जितने सारे रोज आए हैं, रिटर्न हुए हैं, ये वेरिएबल में सिस्टम का वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल काइंड ऑफ, इसमें आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू सी द आउटपुट। सो अगर सी बेसिकली ये आउटपुट पैरामीटर के थ्रू, ये आउटपुट पैरामीटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं आउटपुट। सो यहाँ पे जब आप रन करोगे ना, ये आउटपुट को कैप्चर करने के लिए, एक तो ये वाला पार्ट तो रन हो गया, सिलेक्ट वाला पार्ट तो आपको दिख गया, भुवनेश्वर में कितने लोग रहते रहते हैं, पाँच स्टूडेंट का डिटेल्स दिख गया। बट हाउ व्हाट अबाउट दिस, जो हमने ये शुड नॉट बी सिलेक्ट यार, आई थिंक इट शुड बी सेट, माई मिस्टेक। ओके, सेट दिस इक्वल्स टू दिस। ओके लेट्स ट्राई। अब ये चल जाना चाहिए, अंदर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जीक्यूट, 1 रो अफेक्टेड, ओपीटी, सिलेक्ट ओपीटी नीचे, स्टिल इट इज गिविंग मी नल, why null, print नो इट इज़ नॉट कमिंग। सो ये आपको समझ में आया? ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आउटपुट, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये वेरिएबल क्या करेगा, जो आउटपुट से वैल्यू आएगा ना इसमें कैप्चर करेगा, जस्ट आई एम प्रिंटिंग इट, करेक्ट? लेट मी सी, कुछ अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। एग्जीक्यूट मॉडल इक्वल्स, क्या ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बेकार चीज़ क्यों लिखा है? वही लिखा है राइट, एग्जीक्यूट दिस 2018 पास कर रहा है, हम वही तो कर रहे हैं। लेट्स ट्राई दिस। ओके, सो सेम टू सेम चीज़ करके देखते हैं। ओके, मॉडलियर क्या है, @ कहाँ गया? अपना हो गया मॉडलियर सिटी नेम, city name equals to bbsr. Okay, then
काउंट आउटपुट, उसके बाद क्या है, सिलेक्ट। उसके बाद तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, प्रिंट काउंट। चलो ये करके देखते हैं। अरे यार, काउंट स्टूडेंट, आ गया 5। The record count is plus cast as varchar of 20। ओके, इसको रन करके देखो। अरे यार, रिकॉर्ड काउंट इज 5। ठीक है, देखो जैसे हमने किया है, हमने पहले ये किया था, देखो मैं बताता हूँ। ये वाला हमने किया था, चला नहीं था ठीक से। हाँ, एग्जीक्यूट, देखो ये प्रॉब्लम होता है। एग्जीक्यूट, ओके, देन द प्रोसीजर नेम, फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड पैरामीटर में आउटपुट लिखना है। दैट्स व्हाट आई हैव मिस्ड। गॉट इट? समझा? ये आउटपुट लिखना है, नहीं तो डायरेक्टली मॉडलियर में ये वैल्यू पास होगा, प्रोडक्ट काउंट में ये वैल्यू पास होगा, ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? या क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ। देखो अब फिर से मैं करता हूँ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया, इस प्रोसीजर को कॉल कैसे करना है ये आप कॉल कर लो। ओके, उसके बाद सिटी नेम में BBSR पास करो। ओके, और ये जो वेरिएबल से आउटपुट जो प्रोसीजर भेजेगा, सेंड करेगा ना आउटपुट, इसमें ही आ जाएगा काउंट दिस। ओके, खाली यहाँ पे लिखना है आउटपुट। ओके, उसके बाद प्रिंट ठीक है। अभी हम लोग रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट। द रिकॉर्ड काउंट इज 5। मैंने जब लास्ट टाइम रन किया था ना, नल आ रहा था, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा था, बिकॉज आई डिडंट मेंशन आउटपुट। क्लियर? देखो 1 मिनट में आपको वन लास्ट टाइम ऑल्सो आई विल शो यू, सो दैट पूरा क्लियर हो जाए चीज़ें। देखो, जब आप पास करते हो ना, ये प्रोसीजर करेगा क्या, ये हो गया आउटपुट पैरामीटर। देखो हमें पता है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन फॉर UDF इट इज़ मैंडेटरी टू रिटर्न ए वैल्यू, यस और नो? यस। क्योंकि हम लोग रिटर्न स्पेसिफाई करते हैं जब फंक्शन क्रिएट फंक्शन हम लिखते हैं, इनपुट पैरामीटर पास करते हैं, रिटर्न इंटीजर, नहीं तो varchar, नहीं तो डेट, नहीं तो फ्लोट, न्यूमेरिक, जो भी है हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर, वी डोंट पास एनी रिटर्न टाइप। बट अगर आपको वैल्यू रिटर्न करना है थ्रू अ प्रोसीजर, अगर आप चाहते हो कि प्रोसीजर भी कुछ रिटर्न करके दिखाए, तो इसलिए एक आउटपुट पैरामीटर स्पेसिफाई कर दो। ये पैरामीटर से, ये इनपुट पैरामीटर से प्रोसीजर के अंदर वो इनपुट लेके काम करेगा, और काम खत्म होने के बाद आउटपुट पैरामीटर के थ्रू वैल्यू रिटर्न होगा। दिस इज क्लियर? यस। ओके, तो ये हो गया बिगिन, बोला सिलेक्ट, लिख रहा है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम एड्रेस फ्रॉम
माई स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट एड्रेस इक्वल्स टू सिटी नेम। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ से BBSR पास किया। सो BBSR पास किया मतलब सिटी नेम हो गया BBSR। तो आप क्या कर रहे हो, BBSR सिटी से जो लोग हैं उनका रिकॉर्ड दिखा रहे हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं ना, ये SQL सर्वर का काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेरिएबल है। इससे जो पिछला स्टेप एग्जीक्यूट हुआ ना, अगर जितना रोज़ यहाँ पे रिटर्न हुए होंगे ये वेरिएबल क्या करता है, सिंपली काउंट करके दिखाएगा। जितने रोज़ रिटर्न हुए होंगे ये काउंट करके दिखाएगा। तो हम लोग ये जो काउंट आएगा @रो काउंट, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है, ये @रो काउंट में जो काउंट आएगा आपका जो आउटपुट पैरामीटर है, ओके, आपका ये आउटपुट पैरामीटर है, ये आउटपुट पैरामीटर में वो काउंट आप लोग ऐड कर रहे हो, बेसिकली असाइन कर रहे हो। असाइन करने के बाद ये एंड कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट BBSR जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा BBSR, ओके, ये चला, यहाँ पे आप पास कर रहे हो BBSR। तो BBSR में 5 लोग हैं, 5 लोगों का टेबल में ऐसे डिस्प्ले हो गया, बिकॉज यू हैव रिटन सिलेक्ट स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट एड्रेस इक्वल्स टू BBSR। ये डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद इमीडिएटली इसमें जितने रिकॉर्ड्स आए ये वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ये वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। बट जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा या प्रोसीजर को कॉल करूँगा, प्रोसीजर को कॉल करते वक्त जो आउटपुट आएगा इधर से, ये जो प्रोसीजर जो आउटपुट भेजेगा मुझे यहाँ पे कोई तो वेरिएबल रहना चाहिए ना उसको कैप्चर करने के लिए। ये सेंड कर रहे हैं आउटपुट, आई शुड असाइन ए वेरिएबल विच कैन एक्चुअली रिसीव दैट वैल्यू। तो इसीलिए मैं एक वेरिएबल खुद से डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो काउंट, ये काउंट में क्या करेगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो काउंट में आ जाएगा एज आउटपुट वेरिएबल। अब मैं काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। सो क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। तो अगर कोई पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन, आप सब बोल देना कि फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंडेटरी है और स्टोर प्रोसीजर का रिटर्न टाइप मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। वो फिर से जब पूछेगा कि आर यू श्योर, वो ऐसे ही पूछेगा कि स्टोर प्रोसीजर, दैट मीन्स स्टोर प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू। आपको पूछते बहुत बच्चे बोलते नहीं सर, इट ओनली फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू, स्टोर प्रोसीजर डजंट रिटर्न ए वैल्यू। आप बोलोगे अगर स्टोर प्रोसीजर को वैल्यू अगर इन केस रिटर्न करना है, इट कैन रिटर्न द वैल्यू थ्रू वन आउटपुट पैरामीटर। इनपुट से इनपुट लेगा, आउटपुट पैरामीटर के थ्रू वैल्यू रिटर्न कर पाएगा। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फंक्शन में जैसे हम लोग रिटर्न्स लिख के स्पेसिफाई करते हैं ना, स्टोर प्रोसीजर में इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रिटर्न ए वैल्यू। इफ एट ऑल इट रिक्वायर्स टू रिटर्न ए वैल्यू, देन वी हैव टू स्पेसिफाई एन आउटपुट पैरामीटर। देन वो आउटपुट पैरामीटर के थ्रू ही वैल्यू आ जाएगा जब आप कॉल कर रहे हो। क्लियर? गाइस क्लियर? यस। ठीक है। See, stored procedure may or may not return a value, but UDF returns a value. The return statement, the function returns control to the calling program and returns the result. Okay, so then second point is SP can have input or output parameter, but UDF has input parameters. This is clear? इसमें कुछ बताना जैसा है ही नहीं। क्लियर है ना? स्टोर प्रोसीजर कैन हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, बट फंक्शन का वैसा कुछ नहीं। फंक्शन का एक ही पैरामीटर जो कि है इनपुट, आउटपुट कुछ है ही नहीं, बिकॉज फंक्शन ऐसे ही रिटर्न करता है। फंक्शन का नेचर है कि रिटर्न कर दे वैल्यू को। क्लियर? यस। Okay, then we can call UDF from SP but cannot call SP from function. मतलब फंक्शन के अंदर ना SP कैन हैव इनपुट, सॉरी, से वी कैन कॉल UDF। एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट उल्टा नहीं हो सकता। ओके, स्टोर प्रोसीजर अगर आपने कुछ फंक्शन वगैरह बनाया है, यू वांट टू यूज इट इनसाइड ए स्टोर प्रोसीजर, यू कैन डू दैट, बट यू कैन नॉट, ओके, यू कैन नॉट कॉल स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम ए फंक्शन। फंक्शन से स्टोर प्रोसीजर बनाने कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वी कैन नॉट
दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टफ. क्या हो रहा है? Okay. So we cannot use SP in SQL statements like उल्टा लिखिए, उल्टा लिख दिया. We cannot use SP in SQL statements select insert update. मतलब ये क्या बोल रहा है? We cannot use SP in SQL statements like select insert update. ये सब में स्टोर, जैसे हम लोग प्रोसीजर को रन करना है ना, हम लोग EXEC से रन करते हैं. We cannot write select कीवर्ड, insert कीवर्ड, update कीवर्ड से नहीं कर सकते हैं. ये आपको अपने को एग्जीक्यूट करना है EXEC से, ठीक है. बट SP is not allowed to be used in select statement, but UDF can be used. करेक्ट. यूजर डिफाइन फंक्शन को हम लोग सिलेक्ट के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट. सिलेक्ट DBO डॉट समथिंग, राइट. यस और नो. बट स्टोर प्रोसीजर को हम लोग को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. EXEC. ओके, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. ये सब यूजलेस है, कुछ ज़रूरत नहीं है. हम लोग ये करते हैं. यू कैन नॉट सी can't write DML statements in user defined function. Can't write DML statements in UDF, but use it in SP. सो स्टोर प्रोसीजर का अंदर है ना, आप लोग सिलेक्ट लिख सकते हो. अगर आपको कुछ डेटा अपडेट वगैरह करना है वो भी कर सकते हो. यहाँ पे सिलेक्ट के साथ साथ DML स्टेप इंसर्ट अपडेट डिलीट भी कर सकते हो. बट जब आप फंक्शन लिखते हो ना, फंक्शन में खाली सिलेक्ट ही चलता है. फंक्शन में आप कोई टेबल में डेटा अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हो. अगर आप UDF यूजर डिफाइन फंक्शन खुद का अपना रहे हो. दीज आर फ्यू रूल्स, इतना ही याद रखो. ज़्यादा यहाँ पे तो बहुत कुछ दिया हुआ है, बट कोई इंटरव्यूअर इतना सुनने के लिए रेडी नहीं रहेगा. 13-14 पॉइंट्स. ओके, यूजलेस. देखो ये लिखा है वी कैन यूज ट्रांजैक्शंस इन SP बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन UDF. ओके, जो ट्रांजैक्शन हो गया, जो हम लोग में बोला था कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल में कमिट, सेव, रोल बैक, ठीक है. क्योंकि UDF तुमको अपडेट करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है. UDF में जब DML यूज़ करोगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे, तभी तो ट्रांजैक्शन यूज़ कर पाओगे ना. ये अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ नो वे टू राइट जो अपना ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. क्लियर. अभी आप कुछ अपडेट कर रहे हो तभी आपको रोल बैक करना पड़ेगा या कमिट करना पड़ेगा. अपडेट कुछ टेबल में हुआ या डिलीट हुआ तभी जब ट्रांजैक्शन वाला कमांड्स यूज़ करोगे. यही अलाउ नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे करोगे. SP cannot be used anywhere in where having select part of SQL queries, but UDF can be used. The execution plan can be used in SP, but in UDF it will be compiled every time. मैं बोला था एग्जीक्यूशन प्लान कैन बी रीयूज्ड इन SP, मतलब मैंने आपको जो फर्स्ट डे SP पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा कि SQL सर्वर स्टोर्स SP's एग्जीक्यूशन इन इट्स कैश मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करता है. अगर कुछ डेटा चेंज नहीं है, ये सेम एग्जीक्यूशन, ये क्या करता है बेसिकली, सेम एग्जीक्यूशन प्लान को रन कर देता है. मतलब पहले जो एग्जीक्यूट हुआ है ना उसी को रन करता है, सो दैट फास्टर होता है. कैश टेम्परेरी मेमोरी में वो एग्जीक्यूशन प्लान को स्टोर करके रखता है. बट यहाँ पे वो नहीं होता है. फंक्शन क्या करता है, हर टाइम टेबल पे जाके हिट करता है और डेटा लेके आता है. ओके, we can consider UDF as an expression, but it is not possible in stored procedure. Okay, so these are not all required. ये जो मेन है आपका, ये 5-6 पॉइंट्स है. these are like enough है ये. ओके, मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये भेज दूंगा. so with this we are done with this TSQL part. क्लियर. कुछ डाउट है गाइस इसमें. अभी फंक्शन कैसे बनाते हैं, स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, इनपुट पैरामीटर क्या है, आउटपुट पैरामीटर क्या है, जो हमने कवर किया आज. कुछ डाउट है इसमें.
Okay, so let's connect tomorrow at same time. We'll cover a new topic. Okay. Yes. Okay. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Yes, sir.